بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آج کل جو پینڈورا پیپرز ہر طرف ہمیں نظر آ رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ آج ہم اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے اور انشاءاللہ ہمیں اس کے بعد سمجھ آ جائے گی کہ یہ ہے کیا بلا۔ یہ پینڈورا پیپرز کیا ہیں؟ یہ ایک کمپنی ہے جو کہ ہے ICIJ یعنی انٹرنیشنل کنورشیم آف انویسٹیگیٹو جرنلزم۔ تو اس نے جو ہے اتوار کو ایک دستاویز شائع کی تھی جس میں انہوں نے وہ سب بڑے بڑے نام دیے ہیں جنہوں نے جو ہے وہ بےایمانی کر کے اپنی بہت ساری دولت اکٹھی کی ہوئی تھی۔ تو ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ 14 آف شور سروس فراہم کرنے والوں کی لیک ہونے والی فائلیں 330 سے زیادہ سرکاری عہدیداروں بشمول 35 عالمی رہنماؤں کو غیر ملکی قسمت سے جوڑتی ہیں۔ درجنوں عالمی رہنماؤں اور سینکڑوں سرکاری عہدیداروں نے سینکڑوں ملین ڈالر کے اثاثے چھپانے کے لیے آف شور ٹیکس پناہ گاہیں استعمال کی۔ اتوار کو شائع ہونے والے پینڈورا پیپرز بین الاقوامی کنورشیم آف انویسٹیگیٹو جرنلزم کو لیک ہونے والی دستاویزات پر مبنی ہے۔ یہ انہوں نے اپنی ویب سائٹ پر رکھی ہیں، تو آپ وہاں بھی چیک کر سکتے ہیں اس کو، جس میں اردن کے شاہ عبداللہ دوم، چیک کے وزیر اعظم آندرے بابیس اور کینیا کے صدر سمیت بادشاہوں، صدر اور وزراء اعظم کے غیر ملکی معاملات کو بے نقاب کیا ہے۔ لیک ہونے والے ریکارڈ دنیا بھر کی 14 آف شور سروسز فرموں سے آتے ہیں، ویتنام سے بیلیز سے سیشل تک۔ اس کے پیچھے کون تھا؟ ICIJ نامہ نگاروں اور میڈیا تنظیموں کا ایک نیٹ ورک تھا۔ اس نے لیک ہونے والی 11.9 ملین خفیہ فائلوں کو تلاش کرنے میں 2 سال کی کوشش کی۔ یہ ایسے نہیں ہو گیا، 2 سال سے وہ کوشش کر رہے تھے اس کوشش میں تقریباً 150 میڈیا آؤٹ لیٹس کے 600 سے زیادہ صحافیوں نے مدد کی۔ ٹیم نے 2.94 ٹیٹرا بائٹ کی معلومات کو درجنوں ممالک کے عوامی ریکارڈوں میں اس کے کراس حوالہ دے کر بھی تصدیق کی ہے، یعنی اس میں جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ ICIJ نے بتایا کہ دستاویزات 91 سے زائد ممالک اور علاقوں میں 330 سے زیادہ سائنسدانوں اور عوامی عہدیداروں سے منسلک ہیں، جن میں 35 موجودہ اور سابق قومی رہنما شامل ہیں۔ ICIJ نے اپنی ویب سائٹ پر لکھا ہے کہ ریکارڈ میں موجودہ اور سابقی ملکی رہنماؤں کی ڈیکنگ کے بارے میں معلومات شامل ہیں، جو کہ آف شور ہیون سے کسی بھی سابقہ دستاویزات کے لیک ہونے کے مقابلے میں ہیں۔ تو پینڈورا پیپرز ہیں کیا؟ اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں۔ ویئر آر دا 336 politicians from؟ اچھا، یہ جو 336 سیاستدان یہ کہاں سے تھے؟ A huge leak of tax haven file revealed the secret of shareholding of more than 330 politicians and public officials from more than 90 nations۔ کون کون سے ملک ہیں ہم یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ؟ یوکرائن سے 38 ہیں، رشیا سے 19 ہیں، قازقستان سے 8 ہیں، پاکستان سے 7 اور انڈیا سے 6 اور UAE سے 11، سعودی عربیہ سے 5 اور آئیوری کوسٹ سے 5۔ یہ 100 میں دی ہوئی جو کہ جیسے 7 ہے تو 1700۔ نائجیریا سے 10، سوری یہاں تو کم نمبر دیے گئے لیکن آگے ہم زیادہ دیکھیں گے۔ نائجیریا سے 10، انگولیا سے 9، برازیل سے 9، ایکویڈور سے 8، کولمبیا سے 11، پاناما سے 5 اور ہنڈروس سے 11، میکسیکو سے 7، اسپین سے 5، لبنان سے 6 اور UK سے 9۔ کیا آف شور کمپنی غیر قانونی ہے؟ ICIJ نے زور دیا کہ آف شور کمپنی یعنی غیر اپنے نام کی کمپنیاں کسی دوسرے ملک میں قائم کرنا، اس کو آف شور کمپنی کہتے ہیں۔ ICIJ نے کہا کہ یہ غیر قانونی تو نہیں ہے، لیکن کیونکہ کچھ لوگوں کے پاس اپنے مالی معاملات کو خفیہ رکھنے کی جائز وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن اس طرح کے ادارے اکثر پرکشش ثابت ہوئے کیونکہ وہ ٹیکس چوری اور منی لانڈرنگ کو آسان بناتے ہیں۔ اس طرح کے انکشافات ان رہنماؤں کے لیے شرمندگی سے کم نہیں ہیں جنہوں نے ٹیکس سے بچنے اور بدعنوانی کے خلاف عوامی طور پر مہم چلائی ہو یا گھر میں کفایت شعاری کی اقدامات کی وکالت کی ہو، لیکن ان کے اپنے کام دیکھو۔ اچھا، اس میں کس کس کا نام لیا گیا ہے؟ جمہوریہ چیک کے 9 سے 8 اکتوبر کے پارلیمانی انتخابات سے کچھ دن پہلے دستاویزات نے مبینہ طور پر ملک کے وزیر اعظم بابیس کو فرانس کے شہر کین کے قریب ایک پہاڑی چوٹی والے گاؤں میں 22 ملین ڈالر کی خفیہ جائیداد سے باندھ دیا۔ کاغذات میں کینیا کے صدر اوہورڈ کینیاٹا اور ان کی والدہ کو پاناما میں خفیہ فاؤنڈیشن کے مستفیدین کے طور پر درج کیا گیا ہے۔ لیک ہونے والی دستاویز نے یہ بھی ظاہر کیا ہے کہ کینیاٹا کے 3 بہن بھائی 5 آف شور کمپنیوں کے مالک ہیں، جن کے اثاثے 30 ملین ڈالر سے بھی زیادہ ہیں۔ سیاستدانوں کے ساتھ ساتھ جن عوامی شخصیات کو بے نقاب کیا گیا ہے ان میں کولمبیا کی گلوکارہ شکیرا، جرمن سپر ماڈل کلاڈیا شیفر اور سابق بھارتی کرکٹر کپتان سچن ٹنڈولکر بھی شامل ہیں۔ آف شور سسٹم کیا ہے؟ سینکڑوں عالمی رہنماؤں اور مشہور شخصیات کے مالی معاملات سے پردہ اٹھانے کے علاوہ تفتیش نے آف شور سسٹم پر ہی روشنی ڈالی اور جس کے ساتھ امریکہ آف شور دنیا میں ایک بڑے کھلاڑی کے طور پر ابھرا۔
फाइलों से पता चला है कि साउथ डकोटा अमेरिकी रियासत के तौर पर उभरा है, जिसमें सबसे ज्यादा तादाद में ट्रस्ट है। एक माली तरीकाकार जो अक्सर टैक्स से बचने या बहुत कम करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसको ट्रस्ट कहते हैं। पेंडोरा पेपर्स 2014 में लीक लेक से लेकर 2016 के पनामा पेपर्स तक मालियाती दस्तावेजात के बड़े पैमाने पर ICIJ लीक्स के सिलसिले में ताज़ा तरीन है, जिसमें आइसलैंड के वज़ीर-ए-आज़म के इस्तीफे को मुस्तरद किया और पाकिस्तान के लीडर को बेदखल करने की राह हमवार की। लाखों दस्तावेजात में 100 से ज़ायद अरबपतियों, 30 आलमी रहनुमाओं और 300 सरकारी ओहदेदारों के गैर मुल्की सौदे और असासे ज़ाहिर होते हैं। दुनिया के चंद अमीर तरीन और ताकतवर लोगों के खुफिया सौदे और पोशीदा असासे तारीख के सबसे बड़े ऑफशोर डाटा में सामने आए हैं। ये पहली बार ऐसा हुआ है। पांडोरा पेपर्स को ब्रांड किया गया। कैशे में कंपनियों की 11.9 मिलियन फाइलें शामिल हैं, जो दौलतमंद ग्राहकों की तरफ से किराए गए हैं, ताकि पनामा, दुबई, मोनाको, स्विट्जरलैंड और कैमन जज़ायर जैसे टैक्स हैवनों में ऑफशोर ढांचे और ट्रस्ट बनाए जाएं। वो मौजूदा और साबिक सदर वज़ीर-ए-आज़म और सरबराह ममलिकत समेत 35 आलमी रहनुमाओं के खुफिया गैर मुल्की मामलात को बेनकाब करते हैं। 90 से ज़ायद ममालिकों में 300 से ज़ायद दीगर सरकारी ओहदेदारों जैसे हुकूमती वज़रा, जजों, मेयरों और फौजी जनरलों के खुफिया माली मामलात पर भी रोशनी डालते हैं। फाइलों में कंजर्वेटिव पार्टी के बड़े अतिया दहिंदगान के बारे में भी इंकशाफात शामिल हैं। बोरिस जॉनसन के लिए मुश्किल सवालात उठाते हैं, क्योंकि उनकी पार्टी अपनी सालाना कॉन्फ्रेंस के लिए मिलती है। लीक होने वाले डाटा में 100 से ज़ायद अरबपतियों के अलावा मशहूर शख्सियात जैसे रॉक स्टार्स और कारोबारी रहनुमा भी शामिल हैं। बहुत से लोग शेल कंपनियों को लग्जरी अशिया जैसे जायदाद और यार्ड के साथ साथ पोशीदा बैंक अकाउंट्स रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक कि लूटा हुआ कंबोडियन नवाजात से लेकर पिकासो की पेंटिंग्स और बंक्सी की दीवारों तक का फन मौजूद है। पांडोरा पेपर्स साइट फाइनेंशियल वर्ल्ड के अंदरूनी कामों को जाहिर करते हैं, जो कि गैर मुल्की मैशत के छुपे हुए ऑप्शंस के लिए एक नायाब विंडो फराहम करता है, जो दुनिया के चंद अमीर तरीन अफराद को अपनी दौलत छुपाने के काबिल बनाता है और बाज़ सूरतों में कम या कोई टैक्स अदा नहीं करता है। यहाँ ईमेल्स, मेमो, इनकॉर्पोरेशन रिकॉर्ड्स, शेयर सर्टिफिकेट्स, कंप्लायंस रिपोर्ट्स और पेचीदा डायग्राम है, जिनमें भूल भलियां कॉर्पोरेट ढांचे को दिखाया गया है। अक्सर वो मुबहम शेल कंपनियों के हकीकी मालिकान को पहली बार शनाख्त करने की इजाजत देते हैं। फाइल वाशिंगटन में इंटरनेशनल कन्वर्शन ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट को लीक की गई। इसमें गार्डियन, BBC, पैनोरामा, मोंडे और वाशिंगटन पोस्ट समेत मुंतखब मीडिया शराकतदारों के साथ लीक होने वाले डाटा तक रसाई का इश्तराक किया। 600 से ज़ायद सहाफ़ियों ने बड़े पैमाने पर आलमी तफ्तीश के हिस्से के तौर पर फाइलों का जायजा लिया। पांडोरा पेपर्स ताज़ा तरीन की नुमाइंदगी करते हैं और आदत शुमार के लिहाज से ये पहले वाले पनामा पेपर से कहीं ज्यादा है। मालियाती और आदाद शुमार के बड़े लीक एक सीरीज में, जिसने 2013 के बाद गैर मुल्की दुनिया को झंझोड़ कर रख दिया है। गैर मुल्की इदारों को कायम करना, उनसे फायदा उठाना गैर कानूनी नहीं है, और कुछ मामलात में लोगों की ऐसा करने की कानूनी वजह भी हो सकती है, जैसे सिक्योरिटी। लेकिन टैक्स हेवन की जानिब से पेश की जाने वाली राजदारी बाज़ औक़ात टैक्स चोरों, धोखाबाजों और मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों के लिए पुरकशिश साबित होती है, जिनमें से कुछ फाइलों में बेनकाब होते हैं। अच्छा, एक बार फिर देखते हैं कि पेंडोरा पेपर्स हैं क्या। पेंडोरा पेपर्स की तहकीकात दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा सहाफ़ती ताउन है, जो बहुत सारे सहाफ़ियों ने मिलकर किया है, जिनमें 117 ममालिक के 150 मीडिया आउटलेट्स के 600 से ज़्यादा सहाफ़ी शामिल हैं। ये तफ्तीश 14 ऑफशोर सर्विस फराहम करने वालों के खुफिया रिकॉर्ड्स के लीक होने पर मबनी है, जो कि दौलतमंद अफराद और कॉरपोरेशनों को पेशा वराना खिदमत फराहम करते हैं, जो शेल कंपनियों, ट्रस्टों, फाउंडेशन और दीगर इदारों को कम या बगैर टैक्स के दायरा कार में शामिल करना चाहते हैं। इदारे मालिकान को अपनी शनाख्त अवाम से और बाज़ औक़ात रेगुलेटर से भी छुपाने के काबिल बनाते हैं। अक्सर फराहम कुरिंदगान हल्के मालियाती ज़ाब्ते वाले ममालिक में बैंक अकाउंट्स खोलने में उनकी मदद करते हैं। अच्छा, ये डाटा किस शक्ल में आया है? एक 11.9 मिलियन से ज्यादा का रिकॉर्ड ज्यादातर गैर साफ्ता था। आधी से ज्यादा फाइलें, जो तकरीबन 6.4 मिलियन टैक्स दस्तावेजात पर शामिल थी, जिनमें 4 मिलियन से ज्यादा PDF शामिल हैं, जिनमें से कुछ 10,000 से ज्यादा सफ़ात पर मुश्तमिल थी। दस्तावेजात में पासपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट्स, टैक्स डिक्लेरेशन, कंपनी इनकॉर्पोरेशन रिकॉर्ड, रियल एस्टेट कॉन्ट्रैक्ट और मुस्तैदी सवालनामे शामिल हैं। लीक में 4.1 मिलियन से ज़ायद तस्वीर और ईमेल्स भी थी। दस्तावेजात या 4,67,000 से ज्यादा हैं। रिकॉर्ड में स्लाइड शो और ऑडियो और वीडियो फाइलें भी शामिल थी। अच्छा, इनका नाम क्या रखा गया है? कागजात का नाम यूनानी अफसाना यानी पेंडोरा बॉक्स किसके नाम पर रखा गया है? कहानी में पेंडोरा ने एक मेहर बंद खाना खोला है, जिसमें बुराइयों और मसाइब की कुव्वतें थी, जो एक बार जारी होने के बाद नाकाबिले बर्दाश्त थी। BBC ने ICIJ के डायरेक्टर जेरार्ड रॉयल के हवाले से कहा कि इस लीक को ये नाम दिया गया क्योंकि हम बहुत सी चीजों पर एक बॉक्स खोल रहे हैं। कौन से मुतालिक अवामी शख्सियात पेंडोरा पेपर्स में नजर आती हैं? तहकीकात अमीर और ताकतवर के खुफिया सासों, खुफिया सौदों और पोशीदा किस्मत को जाहिर करती है,
जिनमें 330 से ज्यादा सियासतदान और अवामी ओहदे के लोग, मौजूदा और रिटायर्ड शख्सियात में लातीनी अमेरिका के 15 सरबराहान ममलिकत, 46 रूसी खानदानी और फोर्ब्स मैगजीन की अमीर फहरिस्त से 123 कसीर अरबपति शामिल हैं। बैनुल अक़वामी मंजरनामे पर नोट के नामों में चिली के सदर और सेबस्टिन पेनेरा, जो एक कानूनी कंपनी में शेयर छुपाते हैं, या बैनुल अक़वामी मालियाती फंड के साबिक मैनेजर डायरेक्टर डोमेस्टिक स्ट्रेस काहिन शामिल हैं, जिन्होंने बतौर मशीर काम करते हुए टैक्स से गुरेज किया। इसके अलावा उर्दन के बादशाह अब्दुल्ला दोम अपनी 30 कंपनियों और मालिबो में 3 हवेलियों के साथ मौजूद हैं, और चेक के वजीर आजम आंद्रिज बाबिस, जिन्होंने एक सिनेमा और 2 स्विमिंग पूल के साथ एक जेटो खरीदने के लिए एक ऑफशोर नेटवर्क इस्तेमाल किया। साबिक बरतानवी वजीर आजम टोनी ब्लेयर और उनकी अहलिया जारी भी दिखाई दी। उन्होंने लंदन में एक विक्टोरियन इमारत खरीदी जिसकी कीमत $8.8 मिलियन यानी 7.6 मिलियन है। जराइम की अदाद शुमार भी हैं, जैसे राफेल अमातो अतालवी कैमोरा माफियाबाज, जिन्होंने फिल्म गोमोरा को मुतासर किया और जिन्हें 2009 में स्पेनी शहर मलागा से गिरफ्तार किया गया। फैशन और तफरीह दुनिया के सितारे भी हैं, जैसे क्लाउडिया शेफर, जोलियो गलियसा और शेकरा। खेलों की दुनिया के जाने पहचाने चेहरों में कार्लोवा बेंसलोटी, जिनके स्पेनी टैक्स हुकाम पहले से ही तफ्तीश कर रहे हैं, और बार्सिलोना एफसी के साबिक मैनेजर पेप गार्डियोला इनके अकाउंट पर, जो कि अंदरूकर की प्रिंसिपैलिटी में थे। मजीद मुतल्लिका शख्सियात हैं जिन्हें आने वाले हफ्तों में मंजर आम पर लाया जाएगा, यानी अभी सबके नाम नहीं आए। ये टैक्स हेवन क्या है? टैक्स हेवन एक ऐसा इलाका है जहाँ तजारती कंपनियों की तख्लीक अहम मुआशी सरगर्मियों में शामिल है। ये कुछ मामलात में सिर्फ एक है, वो दूसरे ममालिक की शहरियों को बहुत बड़े माली फवायद फराहम करते हैं जो अपने टैक्स के बोझ को कम करना चाहते हैं। इन इदारों की सरगर्मियों से वाबस्ता टैक्स या तो सिफर या अलामती शरह है, लेकिन वो अपने नाम जाहिर न करने की हिफाजत करते हैं कानूनी हवालों से, जो इसे मुश्किल बनाते हैं किसी खास कंपनी के हकीकी फायदा उठाने वालों की शनाख्त करना। ऑफशोर कंपनियां क्या हैं? ऑफशोर कंपनियां एक ऐसे मुल्क में बनाई जाती हैं जो इस मुल्क से मुख्तलिफ होती हैं, जिसमें इनके फायदे उठाने वाले रहते हैं। आलमी मईशत में इनका वाज़ेह मकसद है, जैसा कि फ्रांसिस्को बॉन्डी, एक वकील और मनी लॉन्ड्रिंग की मशीर, वजाहत करते हैं कि सरमाए के बड़े बहाव के लिए उन्हें बहुत ज्यादा वक्त दरकार होता है। गैर मुल्की मईशत का वो हिस्सा सिर्फ कानूनी नहीं है, बल्कि मौजूदा मईशत जैसी मईशत में भी जो गैर आबाद और आलमी है, उनकी हकीकी जरूरत है। इन कंपनियों के साथ मसला ये है कि जब वो कम या सिफर टैक्स की शरह और राजदारी की तलाश में मुबहम दायरा इख्तियार में बनाए जाते हैं, उन कंपनियों की इन ममालिक में कोई हकीकी सरगर्मी नहीं है जहां वो रजिस्टर्ड है। उन्हें ना दफ्तर की जरूरत है और ना मुलाजिमिन की। उनका इस्तेमाल आमतौर पर असासों के हकीकी मालिक के लिए किसी माली या कानूनी जिम्मेदारी को छुपाने और उनसे बचने के लिए किया जाता है, जो कि माली हो सकता है, लेकिन दूसरों के दरमियान रियल एस्टेट, आर्ट वर्क्स या गाड़ियां भी तश्कील दे सकता है। 2017 में शाये होने वाली एक तहकीक में अंदाजा लगाया गया है कि आलमी GDP का 10% ऑफशोर कंपनियों में था। टैक्स हेवन में कंपनी कौन खोल सकता है और ये कैसे होता है? एक पूरी सनत में जरूरत के मराहल के इंतजाम के इर्द भरा है, ताकि दुनिया के किसी भी हिस्से से कोई भी अपनी कंपनियां खुफिया तौर पर बना सके। इन फर्मों का इस्तेमाल की बदौलत क्लाइंट सरकारी दस्तावेजात जैसे इंजमाम कागजात और शेयर होल्डर लिस्टों में अपनी शनाख्त के किसी भी निशान से बचने का इंतजाम करता है। पेंडोरा पेपर्स की दस्तावेजात में आलमी सतह पर सबसे बड़े ऑफशोर सर्विस सप्लायर्स हैं, जैसे अलेमियन, कोड्रो, गोलैंड वदाई और ट्राइडेंट ट्रस्ट और एशिया सिटी। इनकी खिदमत का इस्तेमाल करते हुए कोई भी जो कभी स्पेन नहीं छोड़ा, वो हांगकांग या कैमन डिजाइन में किसी कंपनी को रजिस्टर करवा सकता है, यहाँ तक कि सोफी से उतरे बगैर। ज्यादा पेचीदा कंपनी चलाने या पेचीदा ढांचा बनाने के लिए ताहम हमेशा ये जरूरी है कि पहले किसी कानूनी मुल्क या टैक्स कंसल्टेंट से अपने रिहायशी मुल्क में मशवरा किया जाए कि कंपनी को टैक्स की पनाहगाह में रखना कानूनी है। खुलासा यह है कि जो शख्स आमतौर पर स्पेन में रिहायश पजीर है, वो गैर मुल्की दायरे इख्तियार में कंपनी कायम कर सकता है, बशर्ते कि हिस्पानवी टैक्स एजेंसी उनके वजूद के बारे में जानती हो और फिर टैक्स भी वसूल करती हो। अगर ये कानूनी है तो पेंडोरा पेपर्स मुतालिका क्यों है? मसाइल उस वक्त शुरू होते हैं जब इन कंपनियों और इनके मुनाफे को जानबूझकर उन दायराकारों में छुपाया जाता है इनके वजूद को हुकाम के सामने ऐलान किए बगैर, जहां हकीकी मालिक टैक्स मकासद के लिए रिहायश पसीर होता है। ये पेंडोरा पेपर्स के बहुत से मामला पर लागू होता है। धुंधलापन की इस परत के तहत नाजायज फंड्स के बहाव पोशीदा है, रिश्वत, मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी या दहशतगर्दी की माली मामलत के दरवाजे खोल रहे हैं। यूरोपीय कमीशन के एक तखमीने के मुताबिक यूरोपीय यूनियन के शहरी खित्ते की GDP के तकरीबन 9.7% की मसावी टैक्स चोरी की मुख्तलिफ गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब है कि हर साल 46 बिलियन टैक्स की आमदनी, जो कि हिस्पानवी वजारत तालीम के सालाना बजट के 8 गुना के बराबर है। OECD का हिसाब है कि कम अज कम 11.3 ट्रिलियन डॉलर आलमी सतह पर गैर मुल्की हैं। इंकशाफात की बदौलत जो इस तरह के लीक्स के साथ हैं, टैक्स फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ जंग में कोशिशों को तकवीत मिली है, कवायद ज़वाबित सामने आए हैं, जैसे कि यूरोपीय यूनियन में एक सीटीबाजी किए करने वालों की हिफाजत, जबकि ममालिक के माबैन माली मालूमात के तबादले को मजबूत किया गया है। पेंडोरा पेपर्स
رازوں کی صنعت کا ایک نیا سنیپ شاٹ ہے جو کہ ہر چیز کے باوجود بدتمیزی سے لطف اندوز ہوتا رہتا ہے اور اپنے موکلوں میں کچھ انتہائی طاقتور شخصیات کو بھی شمار کرتا ہے۔ پاناما پیپرز اور اس میں پینڈورا پیپرز آپس میں کیسے ملتے ہیں اور کیسے مختلف ہیں؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دونوں لیگ کا وزن یکساں ہے، حالانکہ پینڈورا پیپرز میں تقریباً 4 لاکھ کے قریب فائلیں ہیں اور ان کا 2.94 ٹیٹرا بائٹ ڈیٹا اپنے پیشروں کی 2.9 ٹیٹرا بائٹ سے تھوڑا زیادہ ہے، اور جو بے مثال ہے وہ تفصیل کی وہ سطح ہے جس کے ساتھ نیا لیکن لوگوں کے درمیان تعلقات کو ظاہر کرتا ہے جو ٹیکس ہیونوں میں کمپنیوں کی تخلیق سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس مقصد کے لیے مدد کرنے والے پیشہ ور افراد کی وسیع رینج۔ یہ صرف ایک فرم نہیں بلکہ 14 ہیں، اور جتنی زیادہ فرمیں ہیں اتنے ہی زیادہ کلائنٹ ہیں۔ پینڈورا پیپرز میں تقریباً 29,000 سے زیادہ کمپنی مالکان کے بارے میں معلومات ہے جو 5 سال پہلے حاصل کی جانے والی سے دگنی ہے۔ یعنی پینڈورا پیپرز پاناما پیپر سے زیادہ اہم ہے اور اس میں ان سے زیادہ ڈیٹا جو ہے وہ نکلا ہے، زیادہ اس میں جو مجرم ہیں وہ زیادہ ہیں، اس میں تھوڑے کم تھے۔ کیا پاناما پیپرز کے بعد سے کچھ تبدیل ہوا ہے؟ پاناما پیپرز نے اس سے پہلے بات کی نمائندگی کی کہ آف شور کمپنیوں کو کس طرح دیکھا جاتا ہے۔ اس کی تصدیق اس شعبے میں کام کرنے والے وکلاء نے 100 کلائنٹس کو شامل کیا جنہوں نے اپنی کمپنیوں کو نیئرلی کی ہے اور نئی تفتیش کی فائلیں بھی۔ 2016 کے بعد ٹرائیڈنٹ ٹرسٹ نے تقریباً موزاک فونسکیا سے ایک نئے سپلائر میں منتقل کرنے کا انتخاب کیا تاکہ نمائش سے بچا جا سکے اور کیا بے نقاب کیا گیا۔ اچھا، اس میں پینڈورا پیپرز میں ہوا کیا ہے، اصل میں کیا نظر آیا ہے ہمیں؟ 1.5 لاکھ اسپریڈ شیٹ اور آدھی لاکھ تصاویر، یعنی 50,000 لاکھ تصاویر، 1 ملین سے زیادہ ای میلز اور تقریباً 30 پینڈورا پیپرز لیگ میں 6.4 ملین دستاویزات تقریباً شامل ہیں۔ اب تک سامنے آنے والی کہانیوں میں جو شامل ہیں وہ ممتاز ٹوری ڈونٹ جو یورپ کے سب سے بڑے کرپشن سکینڈلز میں شامل تھا۔ اردن کے بادشاہ نے خفیہ ملکیت والی کمپنیوں کے ذریعے برطانیہ اور امریکہ میں جائیدادوں پر تقریباً 70 ملین پاؤنڈ خرچ کیے۔ آذربائیجان کے سرکردہ خاندان کی برطانیہ میں جائیداد کے سودوں میں چھپے ہوئے ملوث ہونے کی مالیت 400 ملین سے زیادہ ہے، اور ایک وزیر اعظم کی آف شور انویسٹمنٹ کمپنی کا اعلان کرنے میں ناکامی 2 فرانسیسی ولاز اور 12 ملین پاؤنڈز میں خریدے تھے۔ کینیا کے صدر اوہورو کینیاٹا کا خاندان کس طرح کئی دہائیوں سے آف شور کمپنیوں کے نیٹ ورک کا مالک تھا؟ فائلوں سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ دنیا کے کچھ طاقتور ترین لوگ، جن میں 90 ممالک کے 330 سے زیادہ سیاستدان شامل ہیں، اپنی دولت چھپانے کے لیے خفیہ آف شور کمپنیوں کا استعمال کرتے تھے۔ امریکی تھنک ٹینک گلوبل فائنینشل انٹیگریٹی سے تعلق رکھنے والے لکشمی کمار نے وضاحت کی ہے کہ یہ لوگ اکثر گمنام کمپنیوں کے استعمال کے ذریعے پیسے کو چھیننے اور چھپانے کے قابل ہوتے ہیں۔ یہ جو ہے ہاؤ بگ از دا پینڈورا پیپرز لیک، تقریباً 14 سورسز میں سے 11 کروڑ 90 لاکھ اور 3,676 فائلز ملی ہیں اور 2.94 ٹیٹرا بائٹ ڈیٹا ملا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہاؤ ڈو دا فائلز بریک ڈاؤن، ہم اس طرح بریک ڈاؤن کر سکتے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی ای میلز ہیں، کتنی اسپریڈ شیٹس ہیں اور کتنی ڈاکومنٹس، امیجز وغیرہ ہیں۔ How does Pandora compare with previous leaks؟ آف شور لیکس جو 2013 میں ہوئے تھے وہ تقریباً 260 GB تھے، اور جو پاناما پیپرز لیک ہوئے تھے 2016 میں وہ 2.6 ٹیٹرا بائٹ سے، اور پیراڈائز پیپر جو 2017 میں ہوئے تھے وہ تقریباً 1.4 ٹیٹرا بائٹ سے، لیکن جو اب ہوئے ہیں پینڈورا پیپرز 2021 میں وہ 2.94 ٹیٹرا بائٹس ہیں۔ آف شور کیا ہے؟ پینڈورا پیپرز کمپنی کے پیچیدہ نیٹ ورک کو ظاہر کرتے ہیں جو سرحدوں کے پار قائم ہے، یعنی وہ اپنے ملک میں نہیں کسی دوسرے ملک میں ہوتے ہیں۔ اکثر پیسے اور اثاثوں کی پوشیدہ ملکیت ہوتی ہے، مثال کے طور پر کسی کے پاس برطانیہ میں پراپرٹی ہو سکتی ہے لیکن وہ دوسرے ملکوں میں قائم کمپنیوں کی زنجیر یا آف شور کے ذریعے اس کا مالک بن سکتا ہے۔ یہ غیر ملکی ممالک یا علاقے ہیں جہاں کمپنی قائم کرنا آسان ہے۔ ایسے قوانین ہیں جن کی وجہ سے کمپنیوں کے مالکان کی شناخت مشکل ہو جاتی ہے یا کوئی کارپوریشن ٹیکس ہے ہی نہیں۔ منزلوں کو اکثر ٹیکس ہیون یا خفیہ دائرہ اختیار کہا جاتا ہے۔ ٹیکس کے ٹھکانوں کی کوئی حتمی فہرست نہیں ہے، لیکن سب سے زیادہ مشہور مقامات میں برٹش اوورسیز ٹیریٹریز جیسے کیمن جزائر اور برٹش ورجن آئی لینڈ کے علاوہ سوئٹزرلینڈ اور سنگاپور جیسے ممالک شامل ہیں۔ اچھا، غیر ملکی پیسہ چھپانا کتنا آسان ہے؟ آپ کو صرف ایک ایسے ملک یا دائرہ کار میں شیل کمپنی قائم کرنے کی ضرورت ہے جس میں اعلیٰ سطح کی رازداری ہو۔ یہ ایک ایسی کمپنی ہے جو صرف نام سے موجود ہے، جس میں کوئی عملہ یا دفتر نہیں ہے، اس کے باوجود پیسے خرچ ہوتے ہیں۔ آپ کی جانب سے شیل کمپنیاں قائم کرنے چلانے کے لیے ماہر فرموں کو ادائیگی کی جاتی ہے۔ یہ فرمیں ادائیگی کرنے والے ڈائریکٹرز کا پتہ اور نام فراہم کر سکتی ہیں، اس لیے اس بات کا کوئی پتہ نہیں چلتا کہ آخر کاروبار کے پیچھے ہے کون۔
ICIJ के मुताबिक ये यकीनी तौर पर कहना नामुमकिन है, लेकिन अंदाजे के मुताबिक 5.6 ट्रिलियन डॉलर से 32 ट्रिलियन डॉलर तक है। बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड ने कहा है कि टैक्स पनाहगाहों के इस्तेमाल से दुनिया भर की हुकूमतों को हर साल 600 बिलियन डॉलर का नुकसान उठाना पड़ता है। मोहतरमा कुमार ने कहा कि ये बाकी मुआशरे के लिए नुकसानदेह है। पैसा छुपाने की सलाहियत आपकी जिंदगी पर बराह रास्त असर डालती है। ये आपके बच्चे की तालीम तक रसाई, सेहत तक रसाई, घर तक रसाई को भी मुतासिर करती है। अच्छा, नई तहकीकात में पेंडोरा पेपर्स की फहरिस्त में कौन कौन था? नई तहकीकात दुनिया भर में मालियाती राजदारी का सबसे बड़ा पर्दाफाश हुआ है। नए पेंडोरा पेपर्स में शामिल हैं सियासतदान, कारपोरेट, सनतकार, अदाकार, खिलाड़ी। अच्छा, ये लीक किसने किए हैं? ICIJ ने किए हैं। और पाकिस्तानी कौन कौन से इसमें ये देख लेते हैं। ICIJ के मुताबिक 700 पाकिस्तानी 2021 के सबसे बड़े मालियाती राजदारी पेंडोरा पेपर्स की फहरिस्त में शामिल है, जिनमें शौकत तरीन वजीर खजाना फैसल वावडा, PMLQ के मोनस इलाही, PMLNA के अली डार, PPP के शर्जील मेमन और मेजर जनरल नुसरत नईम शामिल हैं। फहरिस्त ये हम यहाँ देख सकते हैं। शौकत फयाज तरीन, वकार मसूद खान, आरिफ नकवी PTI, फैसल वावडा, शर्जील मेमन पीपल्स पार्टी, जनरल शफातुल्लाह शाह की बीवी, अब्दुल अलीम खान, चौधरी मोनस इलाही PMLQ, उमर बख्तियार, राजा नादिर परवेज, वकार मसूद खान, तारिक शफी, मेजर जनरल नुसरत नईम, उमर और अहद खटक पाकिस्तानी फिजाई के साबिक सरबराह अब्बास खटक के बेटे। पाकिस्तान के रिटायर्ड फौजी, हुकाम, सियासतदान और ताजरों के नाम ये हैं। शौकत फयाज अहमद तरीन वफाकी वजीर खजाना, मोनस इलाही वफाकी वजीर आबी वसाइल, पीपल पार्टी के शर्जील मेमन, पंजाब के सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान, अब्दुल्ला मसूद साबिक मशीर बराए खजाना और महसूलात, वकार मसूद खान के बेटे। अली डार इसहाक डार के बेटे और सेनेटर फैसल वावडा, उमर बख्तियार वफाकी वजीर, खुसरो बख्तियार के भाई, अदनान आफरीदी MD नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, अली जहांगीर सिद्दीकी, आरिफ नकवी, आरिफ शफी ताजिर, आरिफ उस्मानी सदर नेशनल बैंक, आसिफ हफीज ताजिर, बशीर दाऊद ताजिर, मुनीर शेख दीन ग्रुप, इब्राहिम फाइबर्स के M वसीम, खालिद आदम जी, खुसरो बख्तियार का पूरा खानदान, मोहम्मद अली डब्बा और नवीद मुगीस शेख शुगर मिल के मालिक, शहनाज सजाद अहमद, एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल की बेटी, शुएब शेख एग्जेक्ट CEO और तारिक सईद सेक्यूल। इसके अलावा मारूफ ताजिर तारिक शफी। अगर कंपनी को गैर कानूनी ट्रांजैक्शन के लिए करार दिया जाता है और इन्हें इस्तेमाल किया जाता है तो ऐसी कंपनी बनाने का अमल गैर कानूनी है। अच्छा, ये पूरे 700 तो नहीं है पाकिस्तानी, बाकी अभी लीक नहीं हुए, अभी इन्हीं पाकिस्तानियों के नाम जो है वो मंजर आम पर आए हैं। अब हम बैनुल अक़वामी रहनुमा देखते हैं, वो कौन है। उनमें से ज्यादा अहम और नुमाया शख्सियत है उनमें उर्दन के शाह अब्दुल्ला, टोनी ब्लेयर बरतानिया के साबिक वजीर आजम, कतर के हुक्मरान, यूक्रेन, केनिया और जमहूरिया चेक के रहनुमा, फौजी जवान और खानदान, परवेज मुशर्रफ के साबिक मिलिट्री सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट जनरल शफकतुल्लाह शाह, उसने लंदन का एक अपार्टमेंट खरीदा था। ISIJ के साबिक DG इंसदाद दहशतगर्दी मेजर जनरल नुसरत नईम के नाम पर एक ऑफशोर कंपनी है। उसने कहा कि उसके दोस्त ने इसे बनाया, लेकिन उसने इसे कभी इस्तेमाल नहीं किया। उसने कभी वजूद से इनकार नहीं किया। ये 2009 में उनकी रिटायरमेंट के बाद हुआ। NLC के साबिक DG लेफ्टिनेंट जनरल अफजल मुजफ्फर के बेटे हसन मुजफ्फर की कंपनी है। लेफ्टिनेंट कर्नल राजा नादिर परवेज, अहद खटक साबिक एयर चीफ मार्शल अब्बास खटक के बेटे और साबिक एयर चीफ मार्शल अब्बास खटक के बेटे उमर खटक। एहसन लतीफ जो रिटायर्ड जनरल खालिद मकबूल के दामाद हैं। लेफ्टिनेंट जनरल तनवीर ताहिर की अहलिया ज़हरा तनवीर भी इसमें शामिल है। आप इसकी PDF जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये आप उर्दू और इंग्लिश दोनों में पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं इस लिंक के जरिए, ठीक है।